Hello learners, I am Santosh Kumar Nema, PGT Computer Science from Kendriya Vidyalaya Lalitpur. This is second part of my video, data structures, that is linear list. In this video we will see a few more operations on the linear list. The next operation we are going to learn is insertion in a sorted list. If a linear list is sorted, that is all the values inside the list are in order, arranged in order, in ascending or in descending order, and we have to insert a value inside this. How we will do this? Here is an example. This list contains 20 elements total, and where 17 values have been already inserted, and these all values are in ascending order. Now we want to add one more value to this list, and this value is suppose 35. So we want to insert 35 in this particular list, and we cannot simply add this 35 to the 17th location, that is empty location, since 35 should be there in its proper position, and its proper position is after 33. So we have to insert this 35 at the index number 8, that is after 33, but there are some values already after 33. So how we will do this? So whenever we will need to insert a value in a particular order in a sorted list, first we have to find out the correct position for the new element to be added. Our algorithm, whatever way we will use to reach the correct position, first we have to find out the correct position, that is we have to reach that we have to reach a decision that we have to add this 35 at position 8, and after that we have to make space. We will need to make space, and we will need to make a space at the position number 8 so that we can add 35 here, and for this we will shift all the elements from 8th position to one index ahead, और जो स्पेस हम क्रिएट करेंगे 8th इंडेक्स पर, वहां पर हम 35 को इंसर्ट कर पाएंगे. So let's see the algorithm how we will do this. Here is an algorithm to insert a value in a sorted list. This is our list, example list. Here total 20 elements are there, in which last 3 elements are empty, and total 17 values are already there, and here end index is 16. End index is the index of the last element is 89, and its index is 16. So now if we want to insert a value that is 35, suppose we want to add this 35 in the list, तो इस 35 को इस लिस्ट में ऐड करने के लिए जो पहला स्टेज होगा वो होगा कि हम इस 35 का लोकेशन फाइंड आउट करें कि किस लोकेशन पर इसको ऐड किया जा सकता है, किस लोकेशन पर इस 35 को ऐड किया जा सकता है. तो जब हम इस लिस्ट को देखते हैं, एग्जांपल लिस्ट को, तो हमें ये पता चलता है कि 35 से 35 को 33 और 43 के बीच में इंसर्ट किया जाना है. तो 43 जहां पर जो वैल्यू दी गई है इंडेक्स नंबर 8 पर, वो पहली ऐसी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 35. So now we are sure that we have to add this 35 to index number 8, and for this what we will need to do, we will need to shift all the elements from index number 8 to one step ahead, ताकि सारे एलिमेंट्स को एक एक स्टेप जब हम आगे शिफ्ट कर देंगे, 43 को हम 9th इंडेक्स पर, 57 को 10th इंडेक्स पर, 63 को 11th इंडेक्स पर, इसी तरह से 83 को 15th इंडेक्स पर, 85 को 16th इंडेक्स पर और 89 को 17th इंडेक्स पर भेज देंगे. तो एक एलिमेंट यहाँ इस तरह से इंडेक्स इसमें हमारा इंक्रीज हो जाएगा लिस्ट में, और जो 43 होगा उसकी जगह पर फिर हम 35 को ऐड कर पाएंगे, और इस तरह से हमारी जो लिस्ट होगी इसमें एक एलिमेंट बढ़ भी जाएगा और वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर होगा. ये करने के लिए हम जो एग्जांपल जो एल्गोरिथम यूज करेंगे वो यहाँ पर दी हुई है. देखते हैं ये एल्गोरिथम किस तरह से काम करती है. एल्गोरिथम के फर्स्ट पार्ट में हम काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं. काउंटर वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज कर रहे हैं हम एल पर. एल की हमारी जो वैल्यू है वो है 0. एल मीन्स द लोअर बाउंड मीन्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 0, और
इसके बाद हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि क्या हमारी लिस्ट में और स्पेस बाकी है या नहीं, क्योंकि लिस्ट अगर लिमिटेड वैल्यूज की लिस्ट है तो इसमें उससे ज्यादा वैल्यूज ऐड नहीं की जा सकती। हमारी जो लिस्ट है इसमें टोटल 20 एलिमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं 19th इंडेक्स तक, और एंड इंडेक्स जो है वो है 16। दैट मीन्स 17th, 18th एंड 19th इंडेक्स पर वी कैन ऐड मोर एलिमेंट्स। So here what we are doing, we are just comparing this end index with the upper bound. Upper bound is 19. Upper bound is 19. So if we want to add more element into the list, that end index must be less than upper bound, so that we can know that there is at least one more space to add a new element. Now if end index reaches to the upper bound, that means the list has been completely filled and we cannot add one more element to it. और ऐसा जब भी होगा हम एक एरर मैसेज देते हैं कि लिस्ट इज फुल, इट इज एन ओवरफ्लो एरर, और प्रोग्राम को यहीं एंड करते हैं। हम उसको आगे फिर फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट एड करने का जो वर्क है वो इसमें अब नहीं हो सकता। एल्गोरिथम के अगले हिस्से में ये हमें बताता है कि हमें किस तरीके से उस वैल्यू तक पहुंचना है जहां पर नया एलिमेंट ऐड किया जाएगा। तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल रिपीट स्टेप नंबर 4 टिल LST काउंटर इज लेस देन आइटम एंड काउंटर इज लेस देन एंड इंडेक्स। दैट मीन्स हमें यहां तक इसको शिफ्ट करना है जिससे कि हम 16th तक की वैल्यू से कंपेयर करें, और दूसरा या तो हम 16 तक पहुंच जाए अगर कोई वैल्यू हम ऐड करने वाले हैं। जैसे हम अगर यहाँ ऐड करें 91 तो 91 17th पोजीशन पर आएगा, उसके लिए हमें ये कंपैरिजन करना जरूरी है ताकि हम उस तक पहुंच जाए। और LST काउंटर इज लेस देन आइटम जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं ये हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमें पता चले कि इससे हम ये पता करना चाहते हैं कि जो हम नया आइटम जो ऐड करना चाहते हैं, जो 35 हम ऐड करना चाहते हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। तो हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप तब तक हम ये प्रोसेस करेंगे जब तक LST काउंटर की वैल्यू आइटम से छोटी रहती है। तो वी विल रिपीट ऑल द स्टेप्स। स्टेप नंबर 4 वी विल रिपीट इट टिल द LST काउंटर इज लेस देन आइटम। सो वी आर गोइंग टू ऐड 35 हियर। हमें 35 ऐड करना है, तो द वैल्यू ऑफ आइटम इज 35 in this particular example. So value of item is 35, and what we are doing here in step number 3, we are repeating step number 4. और step number 4 के लिए हम कब तक रिपीट करने वाले हैं, हम रिपीट करने वाले हैं till the LST counter is less than item. Initially the LST counter is 5, क्योंकि काउंटर की वैल्यू 0 है तो LST काउंटर की जो होगा उसकी वैल्यू होगी 5. 5 इज लेस देन आइटम, 5 इज लेस देन 35, तो 5 इज लेस देन 35 है, इसलिए हम इस स्टेप को रन करेंगे। काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट इंडेक्स है 1, और जब दोबारा इस लूप में आने के बाद वो कंपेयर करेगा तो LST काउंटर यानी LST काउंटर की वैल्यू कितनी है, LST काउंटर की वैल्यू है 7, क्योंकि काउंटर की वैल्यू 1 तो LST काउंटर मतलब LST1 और LST1 इज 7 इज अगेन इट इज लेस देन 35, तो कंडीशन ट्रू है। फिर काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ेगी, और काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ने से ये होगी 2, और जब वापस इसको कंपैरिजन पर आएगा तो यहाँ देखेगा LST काउंटर इज लेस देन आइटम, LST काउंटर इज 13 and 13 is less than 35, again the condition is true and it will increase the counter by 1, और इस तरह से ये कंटिन्यूसली 1 by 1 रीच आउट करेगा 7 तक। जब 7 के लिए आएगा तो 7 की वैल्यू जो LST काउंटर LST 7, जब काउंटर की वैल्यू 7 होगी तो LST 7 की जो वैल्यू है वो है 33 इज लेस देन आइटम, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, और व्हेन कंडीशन इज स्टिल ट्रू इट विल अगेन इंक्रीज द काउंटर बाय 1, और काउंटर की वैल्यू इस समय हो जाएगी 8। काउंटर की वैल्यू 8 होते से ही यहां पर हमें पता चलता है, काउंटर की वैल्यू जैसे ही 8 होगी यहां पर आकर वो फिर कंपैरिजन करता है, और इस समय वो जो कंपैरिजन करेगा वो होगा LST काउंटर इज लेस देन आइटम, LST काउंटर है LST 8 मींस it is 43 is less than item, the condition is false, क्योंकि 43 is not less than 35, it is greater than 35, so the condition is false. Since the condition is false here, it will break the loop, it will go to step number 5, and here it is step number 5,
it is initializing another variable that is position. Position equals to counter. तो काउंटर की वैल्यू इस समय इस स्टेज पर जो काउंटर की वैल्यू है, काउंटर की वैल्यू है 8, काउंटर की वैल्यू है 8, तो पोजीशन में हमारे जो पोजीशन वेरिएबल है इसमें आ जाएगा 8. पोजीशन में आ जाता है 8, तो पोजीशन की वैल्यू हो जाती है 8. और इस तरह से हमें यह पता चलता है कि वी हैव टू ऐड दिस 35 एट द इंडेक्स नंबर 8. अब प्रोग्राम का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमें शिफ्टिंग करनी है. जो प्रोग्राम का नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमें शिफ्टिंग करनी है, और जब पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमें वैल्यू को असाइन कर देना है. अब शिफ्टिंग करने के लिए हमें क्या लॉजिक यूज करना होगा? शिफ्टिंग करने के लिए हम बैक साइड से शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि 17th इंडेक्स पर जगह खाली है, और 17th इंडेक्स पर जगह खाली होने से हम जो 16th एलिमेंट है इसको 89 को 17th लोकेशन पर शिफ्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से 85 को 16th लोकेशन पर, 83 को 15th लोकेशन पर, सभी एलिमेंट्स को एक एक करके हम आगे शिफ्ट करते जाएंगे. तो 43 जो होगा इट विल बी मूव टू इंडेक्स नंबर 9. तो इस तरह से जो लिस्ट बनेगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी कि यहाँ पर तो 43 होगा, लेकिन 43 एक यहाँ पर भी होगा, और फिर यहाँ होगा 57, देन होगा 63, देन 65, देन 69, देन 77, देन 83, देन 85, देन 89 एट द प्लेस 17. इस तरह से जो वैल्यूज होंगी, ऑल द वैल्यूज विल बी शिफ्टेड टू वन स्टेप अहेड इन द लीनियर लिस्ट. तो इसके लिए जो लॉजिक यूज होगा वो लॉजिक सिंपल है. हमें इनिशियलाइज करना है एक काउंटर वेरिएबल को लास्ट इंडेक्स पर. हमारी जो एंड इंडेक्स है वो है 16. तो यहां पर हमने जो काउंटर वेरिएबल है इस काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है एंड इंडेक्स पर. काउंटर वेरिएबल को एंड इंडेक्स पर यहां हम इनिशियलाइज करते हैं तो इट बिकेम 16. काउंटर वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है 16, और यहां पर हमें दिया हुआ है कि वी हैव टू रिपीट स्टेप नंबर 8 एंड 9 टिल काउंटर इज ग्रेटर देन पोजीशन. तो जब तक काउंटर की वैल्यू पोजीशन से ज्यादा है हमें ये काम करते जाना है. क्या करना है? हमें करना है LST काउंटर प्लस 1 इक्वल्स टू LST काउंटर. काउंटर प्लस 1 में लिस्ट के काउंटर प्लस 1 इंडेक्स नंबर पर LST काउंटर वैल्यू को डाल देना है. दैट मीन्स काउंटर की वैल्यू अभी हमारे पास है 16, तो 16th इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो है LST काउंटर, और LST काउंटर प्लस 1 मतलब इंडेक्स नंबर 17th. इंडेक्स नंबर 17th पर हम यहां पर डाल देने वाले हैं 89 को. तो यहां ये जो काम हो रहा है ये कर रहा है बेसिकली एक एलिमेंट को कॉपी कर रहा है. 16th इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको 17th इंडेक्स पर कॉपी कर देता है. यहां पर आ जाता है 89 इस तरीके से. और फिर हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 9 में, व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर जस्ट डिक्रीजिंग द काउंटर बाय 1, और काउंटर की वैल्यू जो अभी 16 थी वो हो जाएगी 15. काउंटर की वैल्यू 15 होने से यहां से ये वापस लूप में जाएगा, और स्टेप नंबर 8 को, सिंस इट हैज टू रिपीट स्टेप नंबर 8, इन स्टेप नंबर 8 इट इज रिटन काउंटर प्लस 1. हियर काउंटर प्लस 1 मींस 16. 16th लोकेशन पर LST काउंटर आ जाए. LST काउंटर मींस the value at 15th position. तो 85 will be moved to the next step, और जहां पर अभी 89 है यहां पर आ जाएगा 85. और इस तरह से ये लूप कंटिन्यूअसली चलेगा जब तक कि 8th तक की सारी वैल्यूज एक स्टेप आगे कॉपी नहीं हो जाती. तो इस तरह से ये लूप रन होगा. यू कैन हैव इट्स ड्राई रन, यू कैन वर्क विद दिस एल्गोरिथम, and you can dry run it with this particular example. And when it ends, when you find that counter has crossed the value of position, और काउंटर की वैल्यू 7 हो चुकी है, अगर पोजीशन की वैल्यू 8 थी और काउंटर डिक्रीज होते होते 7 तक आ चुका है, दैट मीन्स यहां हमें रुक जाना है. हमारे जो 8 पोजीशन थी यहां पर हमारी जो जगह थी, जो वैल्यू इंसर्ट करनी थी, वो वैल्यू तक हम पहुंच चुके हैं. और अब हमें क्या करना है कि जो एलिमेंट्स थे 43 और उसके बाद के, वो सारे एक स्टेप आगे शिफ्ट हो चुके हैं. और अब हमें जो कर देना है, अब हमें जो करना है वो ये करना है कि हम पोजीशन पर, यानी 8th पोजीशन जो हमें मिली थी, पोजीशन की वैल्यू 8th था, इस पोजीशन पर आइटम को इंसर्ट कर देना है. तो आइटम की वैल्यू है 35 एंड LST पोजीशन इज, LST पोजीशन मींस द 8th लोकेशन. 8th लोकेशन पर हम 35 डालते हैं तो यहां पर स्टोर हो जाएगा, असाइन हो जाएगा 35. और जैसे ये 35 यहाँ ऐड होता है, हमारा जो वर्क था, वट एवर वी हैज टेकन द टास्क, वी हैव टू इंसर्ट
we had to insert a value in the sorted list, and we have inserted it by making space at its position. Now the work has been completed. और अब लास्ट में हमारा क्या हुआ है, लास्ट में ये हुआ है कि हमारा जो अभी तक एंड इंडेक्स था वो 16 था, लेकिन जब सारी वैल्यूज को एक स्टेप फर्दर हमने शिफ्ट किया एंड वी हैव एडेड वन मोर एलिमेंट टू इट, तो अब जो लास्ट इंडेक्स है उस पर हमारा 89 आ चुका है, और इस 89 का जो इंडेक्स है वो 17, तो हमारा जो एंड इंडेक्स की वैल्यू वो एक बढ़ जानी चाहिए। तो लास्ट स्टेप में हम इस एंड इंडेक्स की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देते हैं एंड देन वी फिनिश्ड विद दिस एल्गोरिथम। तो दिस वाज द एल्गोरिथम बाय विच वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इन इट्स प्रॉपर ऑर्डर इन अ सॉर्टेड लिस्ट, और इसी एल्गोरिथम को यूज करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो हियर इज द पाइथन प्रोग्राम, और यहां हमारा पाइथन प्रोग्राम है। इस पाइथन प्रोग्राम में आप देख सकते हैं वही एल्गोरिथम हमने यूज किए, और इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप स्टडी करेंगे तो ये फंक्शन है हमारा इंसर्ट इनटू लिस्ट, और हमारे पास कोई एक लिस्ट होगी, लिस्ट पास की जाएगी इस फंक्शन को, और द आइटम दैट इज टू बी इंसर्टेड, जो इंसर्ट करना है वो आइटम पास किया जाएगा, और इसी जो हमने अभी एल्गोरिथम में जो लॉजिक देखा उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए ये पूरी तरह से एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करती है। तो दिस वाज द इंसर्शन इन सॉर्टेड लिस्ट। Let's see one more operation on the linear list. It is deletion. Algorithm is shown here, and one example list is also being displayed here. Suppose this is a list LST that has total 17 elements 0 to 16. AL is 0, upper bound is 16, and end index is 16. The last element is stored at 16th position, and this is 89. Now what we need to do, we need to delete a particular element from the list. Suppose we have to delete a value 25 from the list. तो जब लिस्ट में से 25 को डिलीट करना होगा तो हमें करना क्या है? The first step is to find whether this 25 is there in the list or not. If it is not there, we will give an error. The program should give an error that list does not contain the value that is to be deleted, hence no deletion can be done. And if the value is found, we will note the position of it, और उसके बाद जब हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हमें करना क्या है कि हमें दिस 25 is to be deleted, हम करेंगे क्या, हम इस 29 को 25 की जगह पर ले आएंगे। तो द वैल्यूज दोज आर आफ्टर द वैल्यू बीइंग डिलीटेड, हम उन वैल्यूज को एक स्टेप बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो दिस 29 is to be shifted at place 5, and in the same way 33 to step 33 to index 6, 43 to index 7, and in the same way all the values are to be shifted one step backward. तो इस तरह से जो 89 होगा वो शिफ्ट होकर 15th पोजीशन पर आ जाएगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट एलिमेंट 89 ही होगा, लेकिन लास्ट में हम उसे डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से वैल्यूज हमने शिफ्ट की, और हमने 25 को जब डिलीट करना था तो हम किस तरह से डिलीट कर रहे हैं, इसका ये पर्टिकुलर एक एल्गोरिथम है। आइए देखते हैं किस तरह से काम करता है। सबसे पहला जो काम होगा, हम काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे एल पर, एल मींस 0 फर्स्ट वैल्यू, और स्टेप नंबर 3 और 4 को हम रिपीट करेंगे। कब तक हम रिपीट करेंगे? जब तक कि हमारे काउंटर की वैल्यू एंड इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाती। ये जैसा हमने ट्रेवर्सिंग की है सीक्वेंशियल सर्च में, पहले एलिमेंट से शुरू करके लास्ट एलिमेंट तक हम इस लूप को रन कर रहे हैं, और हर वैल्यू को कंपेयर करते जाएंगे कि क्या ये वो वैल्यू है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो जिस वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं वो है आइटम, एंड आइटम्स वैल्यू सपोज इट इज 25, तो हमें डिलीट करना है दिस 25 को डिलीट करने के लिए हमने लूप को स्टार्ट किया फ्रॉम 0, काउंटर की वैल्यू 0 है। हमने कंपेयर किया क्या काउंटर की जो वैल्यू है, जो काउंटर की वैल्यू है क्या वो आइटम के इक्वल है? आइटम के इक्वल नहीं है, ये 5 है, तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है। तो ये स्टेप नंबर 4 पर जाएगा। 4 पर जाने से इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंटर बाय 1। काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 0 के बाद 1, और जब 1 पर हो जाएगी तो यहाँ पर ये अगेन इट विल कंपेयर LST काउंटर। LST काउंटर मीन्स LST1, LST1 मीन्स 7। क्या ये 7 आइटम के इक्वल है? नो, आइटम इज 25, क्योंकि हमें 25 को डिलीट करना है, तो ये 25 नहीं है। इस तरह से ये 1 बाई 1 काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए आइटम को सर्च करने की कोशिश करेगा। अब
अगर मान लो कोई एक ऐसा आइटम डिलीट किया जाना है, इफ दैट आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, suppose the item to be deleted is not available in the list, so what will happen? This entire statement will not be executed, since lst counter equals to item will not be evaluated to ट्रू, और उस केस में ब्रेक नहीं होगा, तो ये कंडीशन आने ही वाली नहीं है, और काउंटर की वैल्यू एक बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू एन इंडेक्स, दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स. दैट मीन्स काउंटर की जो वैल्यू है वो इस 16 के बाद पहुंच जाएगी. दैट मीन्स काउंटर की वैल्यू 17 हो जाएगी 16 को क्रॉस करके. तो कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, तो ये स्टेप का जो रिपीटेशन है वो बंद हो जाएगा, और स्टेप नंबर 5 पर प्रोग्राम पहुंच जाएगा. स्टेप नंबर 5 में ये चेक करता है कि क्या काउंटर की वैल्यू एन इंडेक्स से ज्यादा है. काउंटर की वैल्यू अगर 16 को क्रॉस कर गई तो ये कंडीशन ट्रू सेट होगी इस केस में, और उस कंडीशन में यहाँ एक एरर मैसेज आएगा कि दिस इज एन अंडरफ्लो, आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, और ये एक एरर है, इसलिए प्रोग्राम यहीं से एग्जिट हो जाएगा. तो ये एक प्रोसेस है जब आइटम लिस्ट के अंदर नहीं मिलेगा. अब हम जो प्रोसेस देख रहे हैं इसमें हमें 25 डिलीट करना है हमारे एग्जांपल में. तो ये जो सर्चिंग की प्रोसेस है, जब काउंटर की वैल्यू 5 होगी, इन दैट केस दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू. कंडीशन के ट्रू सेट होने से क्या होगा कि काउंटर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी पोजीशन वेरिएबल में. तो पोजीशन विल बी सेट टू 5. Position will be set to 5 and the command break will be executed. break क्या करेगी, break इस प्रोग्राम को ले जाएगी स्टेप नंबर 5 पर. 5 पर इट विल अगेन चेक काउंटर की वैल्यू क्या एन इंडेक्स से ज्यादा है, नहीं काउंटर की वैल्यू तो 5 है, काउंटर की वैल्यू 5 है, एन इंडेक्स से कम है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स है. तो ये प्रोग्राम आ जाएगा स्टेप नंबर 6 पर. स्टेप नंबर 6 पर काउंटर फिर से इनिशियलाइज हो रहा है. अगर ये एक्चुअल में सिर्फ सावधानी रखने के लिए ऐसा किया जाता है कि जो पोजीशन है हमको, अगला लूप हम जो रन करने वाले हैं वो हमको इस 5th पोजीशन से रन करना है. तो पोजीशन जो हमें मिली थी हमको उस पोजीशन से ही काउंटर को रीसेट करना है. तो इसलिए एक बार और यहाँ पर कर दिया जाता है काउंटर इक्वल्स टू पोजीशन. तो यहाँ पोजीशन आ जाएगी 5 और इस काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 5, और यहां से स्टेप नंबर 6 और 7 रन होंगी, और ये तब तक रन होंगी जब तक काउंटर की वैल्यू एन इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाती. तो काउंटर की वैल्यू जब तक 15 है तब तक ये प्रोग्राम रन होगा, और काउंटर की वैल्यू 15 तक ये जो लूप है ये रन होगा. और ये क्या करने वाला है, ये लूप करने वाला एलएसटी काउंटर. काउंटर की वैल्यू अभी इनिशियली जो है वो है 5, और एलएसटी काउंटर प्लस 1 हो जाता है 6. तो 6th इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो आ जाती है 5th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसकी जगह पर. तो जो 29 है वो यहां पर इस तरह से आ जाता है 25 पर. और फिर आगे चलकर स्टेप नंबर 9 में होता है काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1. काउंटर की वैल्यू अब हो जाती है 6, और काउंटर की वैल्यू 6 होगी, और उसके बाद ये फिर लूप में जाएगा स्टेप नंबर 6 पर, क्योंकि स्टेप नंबर 6 और 7 कंटिन्यूसली रिपीट होनी है जब तक काउंटर की वैल्यू एन इंडेक्स से छोटी है. तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ एलएसटी काउंटर यानी एलएसटी 6 और एलएसटी काउंटर प्लस 1 यानी एलएसटी 7. तो एलएसटी 7th की जो वैल्यू है वो एलएसटी 6 पर आ जाएगी. 7th की वैल्यू है 33 आ जाएगा 29 पर. और इस तरह से ये लूप कंटिन्यूसली रन होगा स्टेप बाय स्टेप. जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर 8th पर जो वैल्यू है 8th इंडेक्स पर वो 7th इंडेक्स पर आ जाएगी, और इस तरह से सारी वैल्यूज एक एक स्टेप आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी. और लास्ट में जो सिचुएशन बचेगी वो ये होगा कि 15th पोजीशन पर होगा 89, और 16th पोजीशन पर भी होगा 89, क्योंकि 89 जब वैल्यू शिफ्ट करते हैं तो ये सिंपल असाइनमेंट्स है. तो 16th पोजीशन पर 89 बचा हुआ रह जाएगा. अब ये जो 16th पोजीशन पर 89 होगा इसको हमको लास्ट में हटाना होगा. तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 10 में लिखा हुआ है रिमूव आइटम एट एंड इंडेक्स. तो जो एंड इंडेक्स पर जो आइटम है, एंड इंडेक्स है 16th इंडेक्स पर जो आइटम है 89 उसको रिमूव कर दिया जाएगा. और उस आइटम को रिमूव करने के बाद, क्योंकि ये 16th आइटम पूरी तरह से हटा दिया गया, अब जो हमारी जो लिस्ट थी इसमें सिर्फ इतने आइटम बचे हैं 0 से लेकर 15 तक. ओनली 16 आइटम्स आर देयर. तो दिस 16 आइटम क्योंकि रिमूव कर दिया गया है लिस्ट से, इसलिए जो एंड इंडेक्स होगी वो 16 की बजाय हो जाएगी 15. तो उसके लिए हमने यहाँ कर दिया एंड इंडेक्स इक्वल्स टू एंड इंडेक्स माइनस 1. इस तरह से ये एल्गोरिथम यूज की जाती है किसी आइटम को लिस्ट से डिलीट करने के लिए. और लिस्ट से डिलीट करने का जो लॉजिक है वो सिंपल है. इफ आइटम इज फाउंड एट पर्टिकुलर पोजीशन वी शिफ्ट all the items after that item to the previous position, to the previous index. एक एक करके उनको जो पिछली इंडेक्स है उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है. अब इसका एक पाइथन प्रोग्राम देख लेते हैं कि ये पाइथन का प्रोग्राम किस तरह से वर्क करेगा. सेम एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए. यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया है डिलीट फ्रॉम लिस्ट,
और इस फंक्शन को पास कर रहे हैं हम एक आइटम, एक लिस्ट, जिससे आइटम को डिलीट किया जाना है, जो आइटम डिलीट किया जाना है वो वैल्यू। और इस तरह से जब इस प्रोग्राम को रन किया जाता है, फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा, तो सबसे पहले ये करता है एन इंडेक्स को इनिशियलाइज, लिस्ट में जितने भी वैल्यूज हैं उनका साइज निकालता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज -1, और टोटल वैल्यूज यहाँ पर 17 है हमारे केस में। इस 17 में से -1 करेगा तो लास्ट आइटम का इंडेक्स आ जाएगा, दैट इज 16। तो एन इंडेक्स हमारा हो जाएगा 16। काउंटर को 0 पर इनिशियलाइज करेगा और सीक्वेंशियल सर्च करके उस पोजीशन को फाइंड आउट करेगा कि जहां पर जो आइटम हमें डिलीट करना है वो आइटम है, वो पोजीशन में यहाँ पे फाइंड आउट होगी। पोजीशन फाइंड आउट होने से काउंटर को फिर से यहाँ इनिशियलाइज किया जाएगा, जैसे हमने अभी एल्गोरिथम में देखा, और देन अ लूप विल रन, और ये लूप सारी वैल्यूज को एक एक करके बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। जब सारी वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी तो एट द लास्ट हम जो लास्ट वैल्यू है, जो 16th पोजीशन पर वैल्यू है, इस वैल्यू को रिमूव कर देंगे। यहां पर हम लिस्ट के पॉप मेथड को कॉल करते हैं और काउंटर पोजीशन, काउंटर की वैल्यू होगी 16, तो 16th वैल्यू को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो हमारी लिस्ट होगी वो बचेगी सिर्फ इतनी, 0 से लेकर 15 तक, टोटल 16 वैल्यूज, और एंड इंडेक्स हो जाएगा 15। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से लिस्ट में, लीनियर लिस्ट से डिलीशंस किए जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला जो ऑपरेशन लीनियर लिस्ट पर परफॉर्म किया जा सकता है, वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग ऑफ अ लिस्ट कैन बी डन इन मेनी वेज, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 11। क्लास 11 में आपने सॉर्टिंग के तरीके देखे, और ये तरीके थे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, और इन तरीकों से आप किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग प्रोसेस जब भी आप काम करेंगे, सॉर्टिंग में एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब भी एक लिस्ट है आपके पास, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एंड इफ यू हैव टू sort it, if you have to arrange all the values inside the list, तो आपको क्या करना होगा, आपको लूप्स रन करने होंगे। लूप्स मल्टीपल टाइम्स रन होते हैं, और इस तरह से सॉर्टिंग में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। लेकिन सॉर्टिंग एक बार होने के बाद, आफ्टर सॉर्टिंग द वैल्यूज कैन इजीली बी सर्च यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज करके सर्चिंग आसान हो जाती है। तो सिंस डेटा इज स्टोर्ड वंस एंड रीड और सर्च मेनी टाइम्स, द ओवरहेड ऑफ सॉर्टिंग प्रोसेस इज अफोर्डेबल। सॉर्टिंग में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन एक बार सॉर्ट करने के बाद वैल्यूज को सर्च करना, बार बार अगर हमें सर्च करना है तो बार बार सर्च करने में हमारा टाइम हर बार बचता है। तो इसलिए एक बार का जो टाइम एक्स्ट्रा हमें लगता है वो अफोर्ड किया जा सकता है अगर डेटा को बार बार सर्च किया जाना है। ये हमने देखा कि जो लीनियर लिस्ट है उस पर किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। थैंक यू।